Hello everyone, this is Vimal Singh Rathore, your teacher at Super Kalam. Very excited to be starting this series on CSET. I know many of you have mailed and asked me in the live sessions to start and teach CSET in the most simplest way possible. Especially after 2017, the elimination CSET is not just qualifying. We should see this as eliminator, right? I know the questions of CSET are getting difficult, especially the quant. Last year, I have taught you a bit of comprehension and reasoning, but now I am starting with quant. That too, with one of the most challenging part, basic numeracy, जिससे अराउंड 21-20 क्वेश्चंस 2025 में अपने आए हैं, है ना? I will teach from the very basic, very simplistic level so that anybody who is from humanities background, who has not touched science since their 10th class, even they are able to understand it. So somewhere you might find that I am slow. You can keep the video at 2x if you feel like that. Somewhere if you are in any case, if you are unable to understand the very fundamental, very basics, right, you can just comment and I will cover the same question in the next session. There will be around 29 to 30 session may range from 20 minutes to around 40-45 minutes. They are going to be very simple. ओके, सो मेरी प्रॉमिस है कि आपका जो क्वांट का, मैथमेटिक्स का जो फियर है, दैट आई एम गोइंग टू रिमूव. आपने 9th और 10th में भी ऐसे मैथ्स नहीं पढ़ी होगी जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से. ठीक है, तो अपन इनफैक्ट स्टार्टिंग के काफ़ी सेशंस में वी आर नॉट इवन गोइंग टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आई एम जस्ट गोइंग टू बिल्ड योर फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, तो उस पर अपन लोग ध्यान देते हैं. डन? ठीक है. So I'll start the session. I will share my screen since I will be looking down on iPad. So you might not see my video at most of the time. ठीक है, but focus on screen और जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो आप बताना. After every 4 or 5 session, we will conduct a test. The test will be live. ठीक है, after giving you some 20-30 minutes, we will be solving the questions together. ठीक है, let's start our first session, basic numeracy. Also, one more important direction guidance before you start the CSET. All of you know the importance, 80 questions, negative marking, and we need to get around 67 marks and etc. We will keep on discussing these things. But the most important part is that we will keep on hopping the topics, like sometimes simple topic, sometimes difficult topic. Okay, so first session will be of basic numeracy, but the second session will be very easy. It will be on direction. ठीक है, एंड इन थर्ड सेशन वी विल कम बैक टू बेसिक न्यूमरेसी विद एडवांस्ड पार्ट. ठीक है, सो इस तरह से अपन करते हैं. आपको कहीं पे भी कोई भी असमंजस, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ परेशानी, तो आप बस कमेंट करते रहो. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन. लिटिल बिट अबाउट मी. ठीक है, सो यू कैन रीड दिस. आई लव टीचिंग, ऑल ऑफ यू नो दैट. फंडामेंटल से अपन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ फॉर्मूला, व्हाट आर रियल नंबर, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. वो सब अपन जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आता रहेगा, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी, वो अपन एक्सप्लेन करते रहेंगे. वी आर गोइंग टू सॉल्व अराउंड 10 क्वेश्चंस टुडे. वो सारे क्वेश्चंस इसी लेसन में आपको मिलेंगे. उससे पहले बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा. आपको फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से. ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मोदी जी ने ही काफ़ी फेमस कर दिया था, है ना? जल्दी से लिखते हैं. तो जो चीज़ें इस सेशन में यूज होगी केवल उसकी बात करेंगे. तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे -2ab हो जाएगा. ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सारी चीज़ें भी आपको पता ही है. बहुत ही सिंपल चीज़ें स्टार्ट करेंगे. ये हिल रहा है. ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? बोलो बोलो.
ब्रैकेट में a प्लस बी। क्यूब के केस में अगर यहाँ प्लस आएगा तो अंदर माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर यहाँ माइनस होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आई थिंक अपन सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट पढ़ाएंगे, ये मैंने आपको थोड़ा पहले बता दिया। ठीक है, एक चलो 2-3 रूल और हैं, वो भी मैं आपको एक बेसिक से बता देता हूं कि लेट्स से यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ नंबर, बिकॉज कई बार ये आ सकता है, सम ऑफ नंबर्स लेट्स से कोई भी दो नंबर हैं n1 n2 है, तो लेट्स से सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 500 टू 600। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए इट इज क्वाइट इजी, यू जस्ट नीड टू फाइंड द एवरेज ऑफ दीज टू नंबर। नंबर 1, तो एवरेज क्या होगा 500 प्लस 600 अपॉन 2, दैट इज 1100 बाई 2, दैट इज 550। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के बीच में नंबर्स कितने हैं, तो जब भी नंबर होता है ना, नंबर्स डिस्टाइट, तो n1 माइनस n2 प्लस 1, तो इस केस में क्या हुआ 600 माइनस 500 प्लस 1, तो इज इक्वल टू 101। ठीक है, तो अब अपना सम कितना हो गया, सम हो गया एवरेज इनटू दिस नंबर। तो एवरेज हमारा कितना आया था 550, नंबर्स कितने आए 101। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक फंड है, अगर आप भूल गए हो कि एंड में जब कोई जीरो होता है तो उसे अपन मल्टीप्लिकेशन में लेते नहीं है, बाद में अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल सा कर लेते हैं, तो 5 5 0 0 एंड देन 5 5। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, 55,550। ठीक है, दिस इज द सम बिटवीन दिस एंड दिस। अब जल्दी से बिफोर यू गेट बोर्ड, लेट अस वेरी क्विकली कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन से जब चीजें सॉल्व करते हैं ना, मेरे को लाइक बचपन से हाउ एवर आई हैव लर्नड इज लर्निंग थ्रू क्यूरियोसिटी, लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस, बिकॉज इतना सारा है मैथ्स में करने को, जरूरी थोड़ी 9th एंड 10th का पूरा ही सिलेबस अपने को कवर करना है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस और वहां से अपन सीखेंगे, वहां से अपन कंसेप्ट की तरफ मूव होंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको बताना है कि इस पूरे जो सम दिया हुआ है, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या है। काफी स्टूपिड सी बात बोली मैंने, बट ठीक है। तो अब इसको आप सीधा वो नहीं करोगे कि 768 इंटू 768 इंटू 768, ऐसे नहीं करोगे। जब भी आपको ऐसी कोई फॉर्म दिखती है, देन यू शुड थिंक कि ये फॉर्मूला क्या है, कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा होगा इसमें। ठीक है, तो यहां पे अपन तुरंत याद करते हैं कि यार ये फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, तो दिस इज ए क्यूब प्लस दिस इज बी क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड दिस इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये बन गया ना। तो अपन इसको एक्सपेंड कर देंगे। इसको एक्सपेंड करके तो क्या आएगा, अपन ने अभी डिस्कस किया था, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कट हो गया, आंसर बन गया 768 प्लस 232, 8 है तो 10, 6 4 10, 7 और 3 10। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 1000 इज द आंसर। समझ गए। तो इससे आपने पहली चीज क्या सीखी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं था। इससे आपने ये सीखा कि जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिख रही हो, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो किसी फॉर्मूला में फिट हो रही हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सब का
एप्लीकेशन, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, आई एम श्योर। अब आते हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई एम श्योर मैनी ऑफ यू माइट बी एबल टू डू इट। अपन इसको स्टार्टिंग से करते हैं, है ना। What is the smallest number which should be added to 4456 so that the sum is completely divisible by 6? ठीक है, अब अपन इसको करना शुरू कर देंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो टाइम खराब होगा। बिकॉज द जो ट्रिक है एग्जाम में व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक इज हाउ यू आर गोइंग टू सेव टाइम। तो आपको पता है कि आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता होने चाहिए। कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड होगा, इफ एनी नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 2, तो उसके 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 प्लेस पे, उसके लास्ट प्लेस पे इवन नंबर आएगा, 2 4 6 8 आएगा, ठीक है। जैसे 12 इज डिविजिबल बाय 2, 14 इज डिविजिबल बाय 2, 26 डिविजिबल बाय 2, 28 डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये हो गया डिविजिबिलिटी फैक्टर ऑफ 2। कोई नंबर अगर 3 से होगा डिविजिबल तो क्या होगा? वो भी काफी सिंपल है। कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो उसका सम 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे लेट्स से दैट नंबर इज 27। अब यू वांटेड टू चेक whether this number is divisible by 3 or not, then what you just need to do is कि add 27, ठीक है। 2 plus 7 is equal to 9, 9 3 से divisible है। let's say that number is 268, 8 और 6 14, 14 plus 2 18, 14 plus 2 16। now 16 is not divisible by 3, ठीक है। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? that the sum of the number has to be divisible by 3। अब 6 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि जो भी नंबर की बात चल रही है, ठीक है, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। आपको डिविजिबल का मतलब समझ में आ रहा है ना? जैसे 10 इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 10 इज डिविजिबल बाय 5, है ना, बिकॉज 2 5s are 10, 5 2s are 10, है ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा भी फास्ट मूव कर रहा हूं, तो प्लीज बता देना। डिविजिबिलिटी मतलब कि उस नंबर से वो बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन दिस केस वी नीड टू फाइंड कि इसमें क्या ऐड ऐसा करें, व्हाट वी शुड ऐड इन दिस नंबर दैट इट गेट्स डिविजिबल बाय 6। देन वी नीड टू फाइंड द नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी हो, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। समझ गए? तो इस केस में अगर 3 से डिविजिबल करना है तो कैसे होगा कि 4 plus 4 8, 8 और 5 13, 13 plus 6 19, 19 is not divisible by 3, 20 is not divisible by 3, 21 is divisible, ठीक है। तो अपन हमारा एक नंबर निकल के आ गया 2, कि 2 हम ऐड करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या वो 2 से डिविजिबल होगा? ठीक है, ऐड करके देख लेते हैं। 4 4 5 6 प्लस 2 तो कितना हो गया? 4 4 5 8। हाँ, बिकॉज अभी सर ने बताया था कि अगर लास्ट डिजिट पे यूनिटरी प्लेस पे अगर 2 4 6 8 होगा तो 2 से भी डिविजिबल होगा। तो मतलब अगर ये नंबर अगर हम 2 ऐड करते हैं 4 4 5 6 में तो वो 3 से भी डिविजिबल है और वो 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और अगर कोई भी नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 12 is divisible by 2 as well, 12 is divisible by 3 as well, and it is divisible by what? 6 as well. Understood? Very simple. So answer of this question becomes what? We just need to add to this number to make it divisible by how much? 6. दोबारा बताता हूं. What is the number that is to be added to this that it becomes divisible by 6, ठीक है। तो हमने वो 2 ऐड किया, रिवर्स याद करते हैं ना। अब देखो 4 4 5 8 2 से डिविजिबल है, बिकॉज इस प्लेस पे कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो अगर 2 4 6 8 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल हो गया। अब हमें चेक करना है कि 3 से है कि नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या था? दैट सम हैज टू बी डिविजिबल बाय 3। अब सम ऐड करते हैं। 4 4 8 8 8 16, 16 प्लस 5 21, 21 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, सही है। 3 7s are 21। अगर और हमारी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या था? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 था कि एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 and 3
हैज टू बी डिविजिबल बाय नंबर 6. गॉट इट? ऐसे ही 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है. ठीक है, आप लोग इसको होमवर्क में करो. 8 का मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, 11 इज ऑल्सो वेरी सिंपल. अभी अगला क्वेश्चन आएगा, आई जस्ट टेल यू. अच्छा, आई गया. ठीक है. सो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88. अब हमको पहले तुरंत ये चेक, अब इसको तुम डिवाइड करने नहीं बैठ जाओगे. बच्चे जो एग्जाम में फंसते हैं वो कैसे फंसते हैं कि वो यहाँ पे आएंगे, इसको 88 से चारों को डिवाइड करना शुरू कर देंगे. नहीं, अपने को फैक्टर निकालना. अपना फैक्टर निकल के आया 11 और 8. वी नीड टू फाइंड अ नंबर इनमें से जो 11 और 8 इन दोनों से डिविजिबल हो. अगर वो 11 और 8 से हो रहा है तो वो 88 से भी हो जाएगा. अब वो कैसे निकालेंगे? काफी सिंपल है. 8 का थोड़ा डिफिकल्ट एक्चुअली होता है. 8 का होता है एनी नंबर दैट हैज टू बी डिविजिबल बाय 8, उसकी लास्ट 3 डिजिट्स चाहे वो नंबर कितने भी हो, वो नंबर ऐसा भी हो 8 9 4 6 6 6 7 8 6 फॉर एग्जाम्पल ये. तो अगर ये नंबर है एंड वी नीड टू फाइंड कि ये क्या ये 8 से डिवाइड हो सकता है, तो अपने को बस लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है. सिमिलरली इन दिस केस एज वेल वी जस्ट नीड टू चेक whether last 3 digits are divisible by 8 or not. ठीक है. 11 का क्या होता है? 11 का काफी इंटरेस्टिंग है. The sum of even places minus the sum of odd places, it should be either 0 or divisible by 11. ठीक है. ये काफी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा. लेट मी टेल यू. सो इसमें सिंपल है काफी. जैसे अपने को ये चेक करना है कि 9944 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट. तो 9 + 4 ये हमारा ऑड प्लेस है ना. 1 और 3 सॉरी 0 1 2 3. तो 0 और 2, 9 + 4 कितना हो गया? 13. 13 - 13 0. ठीक है. इट सिंपली मीन्स दैट दिस इज डिविजिबल बाय 11. ठीक है. सिमिलरली 9 + 6 इज 15. ये प्लेस और ये प्लेस. ठीक है. अब हम 0 और 2 देखते हैं. 8 और 9 और 6 कितना हो गया? 15. और 8 और 7 ऑल्सो 15. सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11. ये भी डिविजिबल है. 9 और 8 और 8 और 8. 9 और 8 इज हाउ मच? 17 माइनस 8 और 8 16. नो, 1 आया. 1 ना तो 11 से डिविजिबल है नंबर 1, और ना ही ये 0 है. और हमने क्या पढ़ा था कि या तो उनका डिफरेंस जो है वो 0 हो, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, आइदर इट हैज टू बी 0 और द डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय 11. ठीक है. अब इसमें देखते हैं 8 और 8 16, 8 और 16. तो आइदर आंसर इज ए और आंसर इज डी. अब आप लोग बताओ अगली चीज कैसे होगी. अब हमें देखना है 8 से, तो इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं कि 944 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट, है ना. तो 8 1 8. अब हमारा बचा 14, तो हमारा 1 ही आएगा 8. तो 14 5 8 9 54, है ना. तो ये डिविजिबल है. तो आंसर बिकम्स ए, बिकॉज ये 11 से चेक हमने कर लिया था कि 11 से ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस वो 0 आ रहा था. ठीक है. और यहाँ पे ये 8 से डिविजिबल हो गया उसके लास्ट 3 डिजिट. ठीक है. अब इसको मैं आपको अलग से थोड़ा सा आप लोगों को स्लो मूव कराते हैं. लेट्स गो टुवर्ड्स दिस रूल ऑफ डिविजिबिलिटी. आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना. थोड़ा सा स्लो करते हैं इसको. वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, उसकी यूनिटरी प्लेस पे इवन नंबर होंगे 2 4 6 8. वेदर दिस नंबर एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3, उसका सम विल बी डिविजिबल बाय 3. ठीक है. 4 होगा तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा. 4 का अभी अपन और करेंगे. 4 5 हमने इसमें क्या पढ़ा? 8 का पढ़ा. ठीक है. 8 का लास्ट मान लो नंबर है A B C D E, तो लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, दे हैज टू बी डिविजिबल बाय 8. हमने 11 का पढ़ा. 11 में द सम ऑफ इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर माइनस ऑड प्लेसेस
ये तो ये जीरो के बराबर हो, या जो भी नंबर आए, मान लो x आए, दैट हैज टू बी डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो ये अपन ने 4 चीजें पढ़ ली अपनी आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी जो नंबर रह गए हैं वो आप लोग मुझे होमवर्क में बताओ करके कि व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 5। वेरी इजी, वेरी इजी। 5 की डिविजिबिलिटी, 4 की, 7 की और 9 की, 10 की भी काफी आसान है। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफी सारे लोग ये क्वेश्चन शायद ना कर पाए, है ना, तो इसको मैं बहुत ही आसानी से सॉल्व कराता हूं। अपने को ना एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, काफी सिंपल सी, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमाइंडर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। इसको याद कर लेते हैं। बचपन में लेट से अपन डिवीजन करते थे, 37 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 7 जार 35 2। इस पूरी इक्वेशन में जो ये है, दिस इज व्हाट, क्या, डिविडेंड। बोलो साथ में, बोलो, इन्वॉल्व हो। ये हमारा हो गया क्या, डिविडेंड। ये क्या है, क्वोशिएंट। ये क्या है, रिमाइंडर। और ये क्या है, डिवीजर। अब इसमें हमें बताया गया है कि जो डिवीजर है दैट इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट, डिवीजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर इज व्हाट, 46। व्हाट इज द डिविडेंड। ठीक है, तो 10Q इज इक्वल टू 46 इंटू 5। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 बाई 2, दिस बिकम्स 23। सो Q कम्स 23। समझ में आ गया ना? ये काटना पीटना याद है ना बचपन का? दोबारा करके दिखाता हूँ, शायद काटने पीटने में जल्दबाजी कर दी मैंने, थोड़ा आराम से बताता हूँ। ठीक है, इसको पतला कर सकते हैं क्या? थोड़ा पतला करता हूँ। तो अपना सम था कि डिवीजर, कलर चेंज, डिवीजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर इज 46। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 10Q इज इक्वल टू 5 इंटू 46। अब कैसे काटते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 से काटा तो 23, क्वोशिएंट आ गया 23। ठीक है, क्वोशिएंट इज 23 और डिवीजर जो था वो क्या था, आपको ये देखो, ध्यान करो, डिवीजर इज 10 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, तो डिवीजर आ गया 230। अब सिंपल सी इक्वेशन होती है ना, इस वाले डिवीजन की, कि डिविडेंड इज ऑलवेज, लिख लो ये इक्वेशन, ये याद कर लो फॉर्मूला, फंडामेंटल से भी वैसे मिल जाएगा आपको ये फॉर्मूला। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड हमारा फिर कितना आया, डिवीजर कितना है, डिवीजर इज 23, क्वोशिएंट इज, डिवीजर इज 230, सॉरी, क्वोशिएंट इज 23, तो 230 इंटू 23, और रिमाइंडर हमारा क्या था, 46। ठीक है, मेरे साथ हो ना? अब 23 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर में याद कराऊंगा। 23 का स्क्वायर इज 529, तो 5290, 5290 प्लस 46, ऐड कर लो, 5290 प्लस 46, 9 और 4 13, 3, आंसर इज 5336। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा ये स्पेसिफिक फॉर्मूला, और काफी टाइम बाद आपके दिमाग को याद कराया कि आप 9th 10th में नॉर्मल डिवीजन कैसे करते थे। नाउ कम्स टू लिटिल बिट इजियर क्वेश्चन, वेरी जल्दी जल्दी करो। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11? 2 डिजिट नंबर, नॉट 3 डिजिट, तो एनी नंबर फ्रॉम 22 टू 99, आंसर इज 9 ओनली। ठीक है, 11 to 99, सॉरी, 11 to 99,
तो आंसर इज 9, है ना, बिकॉज इससे पहले तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। ये काफी सिंपल है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 12 मतलब 11 बाई 12 एंड 98 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, तो 12 के बाद आएगा 22 और 98 से पहले आएगा 88, है ना, तो आंसर इज 7। वाई? बिकॉज 11 कट गया और 99 कट गया, तो 9 से आंसर हमारा 7 हो गया। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है मेरे को, आप लोग इसको ध्यान से करो, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि अरे सर यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये दिस इज अ वेरी क्विक क्वेश्चन। टेक योर टाइम, टेक सम टाइम, जल्दी से बताओ। आई विल गिव यू set a timer of 30 seconds. I've set the timer of 30 seconds. जल्दी से बताओ इसका आंसर। स्लो तो मूव नहीं कर रहा मैं, चलो ठीक है। तो ये ना कई बार आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना होता। बाय सॉल्विंग क्वेश्चन आई वांट टू टीच यू मल्टीपल साइकोलॉजी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। कई बार आपको ऑप्शन देखने होते हैं पहले, है ना। इनफैक्ट पूरा क्वेश्चन एक साथ हमेशा पढ़ा करो। अगर पूरा सम पॉजिटिव में तो आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो अगर नेगेटिव में 3 ऑप्शन है तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, राइट। सो हमारा क्वेश्चन में डेसिमल्स हैं, बट इसमें डेसिमल्स नहीं है, तो मतलब ये अप्रोक्सीमेशन पूछ रहा है। तो अपन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं ना। अपन बॉड मास का रूल अप्लाई करते हैं पहले। तो ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, याद आ गया। पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 11 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 2 जा 22 0 प्लस 400, आंसर 2600। तो 2600 के आसपास सबसे कौन सा है, ये है। आंसर इज दिस, वेरी सिंपल। डू नॉट गो इनटू डेसिमल ना, इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन कर लो ना, तो दिस इज अ वेरी स्मार्ट गैस वर्क। तो कई बार ऑप्शन से अपने को आंसर मिल जाते हैं। यूपीएससी में सीबीएसई की तरह आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी ना, आपको एबीसीडी में क्या सही है वो मिलेगा, राइट। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए ऑप्शन के जरिए भी। हमारे पास समय की सीमा है, एंड एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस सेशन एज वेल, जो अपन ने कल लाइव दिया था, कि आर इंटेंट इज टू सॉल्व एटलीस्ट 55 क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। 55 में हम अगर हम 5-7 गलत भी कर दें, इट्स फाइन। We need to learn this skill by solving these questions, that what are those 25 or 20 or 15 questions that we should leave, that are time draining bomb. We should avoid those mines being sprained by UPSC in the examination. गर्मी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, स्ट्रेस है, एक रात पहले नींद नहीं आई होती है, लोग घर से बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं, उस एंजाइटी में 55 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। बट आउट ऑफ बिफोर एग्जाम विल टारगेट 55, इन एग्जाम आपने 50 भी कर दिए, यू विल पास द कट ऑफ बाय बिट ग्लोरियस मार्क्स, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि बस 40 करके आए, 40 फिर इट्स वेरी ट्रिकी, बिकॉज इफ यू गेट 5-6 नेगेटिव यू आर आउट ऑफ द गेम, है ना। वो चीज नहीं करनी है। व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेशन, अब हम बॉड मास के क्वेश्चन में आ गए। व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो अपन डिवाइड ट्राई करते हैं। तो अगर हम डिवाइड लगाते हैं 4 + 2 = 11, हमने डिवाइड लगाया तो यहाँ पे डिवाइड है, तो 4 बाय यहाँ पे 3 आ गया, और 2 ये 1/3 आ गया। ये तो 11 कभी भी नहीं हो पाएगा, तो ये गलत हो गया। माइनस करेंगे तो 2 - 6 - 12 डिवाइडेड बाई 4 = 3 + 2, तो 3 + 2 6 -6 - 12, नहीं ये भी गलत हो गया। इंटू लगाते हैं, 2 × 6 - 12 4 + 2 = 11। ये पार्ट हमारा हो गया 3, तो और ये पार्ट हमारा हो गया 12, तो 12 - 3 + 2, 12 - 3 is 9 + 2 = 11। Hence LHS is equal to RHS। तो आंसर इज मल्टीप्लीकेशन। ये मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए दिया सो दैट यू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ बॉड मास, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें
चलो टेक 10 सेकेंड्स, सब क्वेश्चन को समझो आराम से, टेक सम टाइम, है ना, जल्दी सॉल्व नहीं कर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है एंड एवरीबडी हैज टू कंप्लीट द होमवर्क। पहला चूंकि सेशन है तो मैं आपको बहुत छोटा सा ही होमवर्क दूंगा, कुछ फॉर्मूले दूंगा जो आपको लिखने हैं, है ना। मैं आपको फॉर्मूलों के नाम बता दे रहा हूं तब तक, ठीक है। तो इसमें किसने सही किया? अच्छा देखो, ये अपना ब्रैकेट में है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। तो पहले तो ये ब्रैकेट हम अपन वो करेंगे, तो 6 4 24, 24 बाय 6, 24 बाय 6 कितना हो गया, जल्दी बताओ। 24 6 4 24, ठीक है। तो ये हमारा 4 हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया, ये हमारा 1 हो गया। यहीं पे यही ट्रिक है, 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 3 12 प्लस 1 13, आंसर इज 4 बाय 13, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसमें भी बॉड मास अप्लाई करना। आज हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा, है ना, हमने वो फॉर्मूला पढ़ा दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, अपन ने ये पढ़ा। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इसमें आपको बताना है, ये थोड़ा सा दिमाग लगा देना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। इनको अपने इन चारों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो 4 में से 3 का आंसर सेम आएगा। आपको बताना है किसका आंसर सेम नहीं है, विच वन इज द ऑड वन आउट, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। Do not think that these kind of questions might not come in UPSC. UPSC is asking any kind of basic numeracy, left, right and center, ठीक है। And yeah, you can just install SuperKalam. You will get access to all of these things. And to get this PDF, join Telegram. You can just search SuperKalam on Telegram and you will find this PDF. And we are going to have these sessions on the daily basis until we cover 100% of the syllabus, 100% of the syllabus. But I won't be able to cover if I don't get enough response, enough comments, because if you are not completing your homework, what is my intent? मैं कैसे फिर इस चीज को किस मोटिवेशन से आगे बढ़ाऊं? I have taken the pledge that even during Diwali, these sessions will keep on coming. Be daily disciplined, keep on solving daily mains question as well. We will definitely going to solve previous year questions in multiple tests, but let us first build the fundamentals. We will cover reading comprehension and reasoning directly from PYQs, but for mathematics, I really want you to build some fundamentals before we go to PYQs. Okay, so mathematics will run around 30-35 sessions, around 20-30 minutes each. All the best. Do comment, share and subscribe. All the best. Thank you.